Yes, good morning, students. Okay, बेटे, we are discussing the NCERT questions. ठीक है, NCERT questions हम discuss कर रहे थे. So we have done first 4 questions. Okay, I am starting with the 5th one. In question number 4, what I have discussed with you that in a transcription unit, you see two kind of strands. यस बेटे, मैम तो मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, अब आ रही है. ओके बेटे, थोड़ा सा कनेक्शन डिस. ओके बेटे, सो वी आर डिस्कसिंग द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ठीक है, तो वी हैव डन 4 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू दैट इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड in a transcription unit is written as, okay, you know very well that in the transcription unit that stand which is used as a reference for showing the location of components of the transcription unit, it is actually known as, okay, that stand is known as coding stand. Since it is not coding for anything, but it is known as coding stand for finding the locations of the different components of the transcription unit. ठीक है, तो उसके ऊपर क्या बेसिस प्रेजेंट है दैट इज गिवन टू यू. तो दैट स्टैंड इट एक्चुअली रन्स इन 5' to 3' डायरेक्शन एंड व्हाट इज आस्किंग दैट राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए. ठीक है, आपने मैसेंजर आरएनए जो है उसका सीक्वेंस बताना है. तो देखो बेटे, वन थिंग यू टेक इट इन योर माइंड कि इन केस ऑफ आरएनए, ठीक है, एडेनिन इट ऑलवेज बाइंड विद यूरासिल बिकॉज थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट. आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता. तो जहां पे भी आपको ए लिखा आ रहा है ना, दैट उसकी बाइंडिंग आपने किसके साथ करनी है? यूरासिल के साथ करनी है. तो व्हेन यू हैव टू राइट द नाइट्रोजेनियस बेसिस फॉर दिस, so you have to write, जैसे फर्स्ट में हमारे पास नाइट्रोजेनियस बेस है एडेनाइन, so you have to bind that adenine with what? यूरासिल. ठीक है बेटा, थाइमिन को आप किसके साथ बाइंड करोगी? एडेनिन के साथ. देन ग्वानिन है, ग्वानिन को आप साइटोसिन के साथ बाइंड करेंगे. देन आपके पास साइटोसिन है, तो साइटोसिन को थाइमिन के साथ बाइंड करेंगे. इस तरह से आप पूरा स्टैंड जो है मैसेंजर आरएनए का यू हैव टू कंप्लीट. ओके, बस एक चीज आपने याद रखनी है कि wherever the adenine is written, in place of that adenine you have to write the uracil. Okay बेटे, तो complete that stand. Now question number 5 is which property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesize semi-conservative mode of replication. ठीक है, तो कहते हैं कि डीएनए जो है उसके अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट थी जिसके बेसिस पर उसने कहा कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड रखता है रेप्लिकेशन का. ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हेन वैटसन एंड क्रिक दे हैव गिवन द दैट डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, then few things that comes in their mind is that DNA which is actually consists of some sugar molecules along with nitrogenous bases and phosphate groups. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि शुगर जो है और जो नाइट्रोजेनियस फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डीएनए स्ट्रैंड्स जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर्म करता है एंड इनसाइड द लैडर लाइक अरेंजमेंट. ठीक है, जो डीएनए के अंदर लैडर लाइक अरेंजमेंट है उसमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजेनियस बेसिस प्रेजेंट है. एंड व्हेन दे स्टडी द नाइट्रोजेनियस बेसिस दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, they come to know that those nitrogenous bases which are actually present on one strand of the DNA, they are complementary nitrogenous bases, they are actually present on the adjacent strand. So on the basis of that
they assumed that, or you can say they conclude that when both the DNA strands they open, they act as the guiding strand for the synthesis of the new daughter strand. And the binding of the bases on the new daughter strand is actually based on the complementary mechanism. So DNA polymerase enzyme, it actually comes, it reads the bases that are present on the template strands. Okay, there are two template strands which act as guiding strand. So one strand of DNA which runs in 3' to 5' direction, and other strand of the DNA which usually run in 5' to 3' direction. तो दोनों ही strand कैसे behave कर रहे हैं, टेम्पलेट स्टैंड की तरह behave कर रहे हैं. तो उनको ये पता लग गया कि DNA polymerase enzyme is the chief enzyme. It reads the bases that are present on the two strands of the DNA, and on the basis of that they pick up the bases from the cell constitution, and on the mechanism of complementarity they join those bases. For example, if adenine is present on the parent strand of DNA, then this adenine is going to be bind with thymine. Okay, if guanine is present, then guanine is going to be bind with cytosine. If cytosine is present, then cytosine is going to be bind with guanine. तो दो चीजें उन्हें पता लगी. एक ये पता लगा कि डीएनए डबल स्टैंड से बना हुआ है, और दोनों ही स्टैंड डीएनए के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस रखते हैं. और इसी के बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि जब डीएनए हेलिक्स ओपन होता है तो बोथ द स्टैंड एक्ट एज गाइडिंग स्टैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू daughter strands, and daughter strands their nitrogenous bases also bind on the same mechanism, that is mechanism of complementary basis. DNA polymerase comes, it reads the bases present on the parent strand, and on the basis of that it attach the corresponding complementary basis for the daughter strand. ठीक है बेटा, तो इस प्रॉपर्टी के बारे में हमको पता लगा था. तो नेक्स्ट जो है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट. ठीक है, कोई भी टेम्पलेट जो है इसके केमिकल नेचर को ध्यान में रखिए कि वेदर इट इज डीएनए और इट इज आरएनए, एंड द नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट. ठीक है, कौन सी न्यूक्लिक एसिड उससे बन रही है, क्या डीएनए जो है उससे आरएनए बन रहा है, और अगर आरएनए है तो उससे आगे क्या बन रहा है. ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए. आपसे वो पूछ रहा है लिस्ट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेसेस. आपने न्यूक्लिक एसिड जो है उनका पॉलीमराइजेशन करने वाले एंजाइम्स बताने हैं. ठीक है बेटे, तो फर्स्ट हम लेंगे द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो यू नो दैट इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देयर इज अ चीफ एंजाइम प्रेजेंट, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज. तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रीड करता है उन बेसिस को which are present on the two parental strand. ठीक है, और one parent strand whose polarity is in the direction 3' to 5', and on the other parent strand whose polarity is in the direction 5' to 3'. तो एक एंजाइम आपका हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. And what is the second enzyme? So second enzyme is actually seen in case of process of transcription. ठीक है, तो you know that the synthesis of messenger RNA from DNA, it is known as a transcription. So transcription it can happen in prokaryotes as well as in eukaryotes. So if we are talking about the prokaryotic transcription, ठीक है, अगर हम prokaryotic transcription की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि there is only single RNA polymerase enzyme. And what is the full name of that enzyme? So the full name of that enzyme is DNA dependent RNA polymerase. ठीक है बेटे, पर अगर वो कहता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो यूकैरियोट्स में है, तो यू नो दैट इन दैट केस 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेसेस आर देयर. ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1, देन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2, एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3. तो तीनों के आपने फंक्शन यहाँ पे लिख देने हैं. ठीक है, आपको पता है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनएस को ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज. It may be 28S, it may be 18S, it may be 5.8S. Okay, what is the function of RNA polymerase 2? So RNA polymerase 2 always form precursor of the messenger RNA, which is heterogeneous RNA. And RNA polymerase 3 means DNA dependent RNA polymerase 3. तो उसका function क्या है? It form transfer RNA, small nuclear RNAs and small ribosomal RNAs. तो टोटल हमारे पास कितने एंजाइम हो गए, हमारे पास टोटल 5 एंजाइम्स हो गए हैं. ठीक है, वन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सेकंड इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, एंड थर्ड इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1,
then DNA dependent RNA polymerase 2 and DNA dependent RNA polymerase 3. तो सभी के फंक्शंस भी आप लिख देंगे, वेरी इजी। ओके बेटा, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हाउ डज हर्शे एंड चेज डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट व्हाइल प्रूविंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उसने आपसे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के लिए हर्शे एंड चेज जो उन्होंने किसको सिलेक्ट किया था। ठीक है बेटे, तो हर्शे एंड चेज जो थे उन्होंने यहाँ पर क्या लिया था, तो आपको पता है कि हर्शे एंड चेज जो है उन्होंने बैक्टीरियोफाजेस लिए थे एंड वन बैक्टीरियोफाजेस जो थे उनको एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया विच जनरली कंटेन्स द नाइट्रोजन। ठीक है, जिसके अंदर जो है नहीं, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। और दूसरा जो बैक्टीरियोफाजेस थे, अदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफाजेस, they are allowed to grow in a culture medium that contains radioactive sulfur. उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि those bacteriophages are generally those bacteria viruses which kills bacteria. Okay, so those bacteriophages which grow under the medium radioactive phosphorus, they have their DNA as radioactive, and those which grow in the medium radioactive sulfur, the radioactivity is not found in their DNA, it is actually present in the proteins. And later they selected the E. coli bacteria and done their infection by using the bacteriophages. What they observe in case 1, when the lysis of the bacterial cell takes place, the radioactive DNA, it is actually present inside the center of the bacterial cell, because this radioactive DNA, it enters into the bacterial cell and is responsible for their lysis. But what they observe in the second case, they observe that in the center, radioactivity is not found, whereas radioactivity is found in the supernatant which contains the proteins. So again they have two things, one is protein and other is DNA. तो अगर रेडियोएक्टिविटी आपको बाहरी नजर आ रही है प्रोटीन्स में, तो इसका मतलब अब भी अंदर कौन गया है, डीएनए गया है। तो फ्रॉम बोथ ऑफ दीज केसेस दे कंक्लूड दैट इट इज एक्चुअली द डीएनए which enters into the bacterium and causes the lysis of the bacterium. That's why DNA is proved to be a genetic material. Okay, if you remember, the Frederick Griff experiment also proves that DNA is the genetic material. But some of the biologists, they do not convinced by that experiment. Then later Hershey and Chase did this experiment and again proved that it is not the protein, whereas it is the DNA which acts as the genetic material. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पर है हम, डिफरेंशिएट बिटवीन रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। ओके स्टूडेंट्स, सो रेपिटेटिव डीएनए इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द सैटेलाइट डीएनए। व्हाट डू यू मीन बाय रेपिटेटिव डीएनए? as you know that if you study the human genome, entire human genome, then what you see that most of the base pair, chemical base pairs that are present on the human genome, they are similar in appearance as well as function. But some of the bases, ठीक है, some of the chemical base pairs, they are present in specific regions of the DNA, and these chemical base pairs, they repeat themselves in a characteristic pattern. So these are known as the repetitive DNAs. Okay, but these repetitive DNAs here, the bases, they are repeating in the group of 2, 3, 4 or 6. What are satellite DNA? To satellite DNA, it also contains a repetitive DNA. But this satellite DNA, it contains both type of you can say repetitive DNAs that have extreme small length or have larger length. ठीक है, तो सैटेलाइट डीएनए में भी उन्हें रेपिटेटिव डीएनए मिले, पर कुछ रेपिटेटिव डीएनए ऐसे थे जिनकी लेंथ जो थी सेगमेंट की स्मॉल थी एंड दे हैव एडेनिन थाइमिन रिच बेसेस इन देम। ओके, या फिर उसमें एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म था। So on the basis of that, they call these as mini satellites or microsatellites. Okay, but next is messenger RNA and transfer RNA. What is messenger RNA? The RNA which came into existence during the process of transcription from DNA. That is known as messenger RNA. And function of messenger RNA is that this messenger RNA, it bears triplet of nitrogenous bases over it, which act as codon. ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो है वो फिर कोडॉन्स रखता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। आपको पता है कि इन ट्रांसलेशन द ट्रांसफर आरएनए कम्स, रीड द कोडॉन, अटैच द कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड्स।
ओके नेक्स्ट उसके साथ उसने ट्रांसफर आरएनए पूछा है, तो यू हैव टू राइट दैट दीस ट्रांसफर आरएनएस दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द लार्जर सबयूनिट of the ribosomes where the translation takes place. So ribosome here is the site of translation, and here so many transfer RNAs are present. So these transfer RNAs they actually do two specific tasks. One is the initiation of the translation. ठीक है, एक तो ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, and here a special type of transfer RNA is there which is known as the initiator transfer RNA, and as soon as it identifies the codon AUG, it starts the process of translation. ठीक है बेटे, दूसरा फंक्शन ट्रांसफर आरएनए का ये है कि ट्रांसफर आरएनए they are actually involved in the binding of the adjacent amino acids. When two transfer RNA come near to each other, then charging of the transfer RNA takes place, and a peptide bond is established between the two adjacent amino acids. So in this way, transfer RNA not only read the codons, but they also involved in the binding of the amino acids, which later leads to proteins. ठीक बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है हमारे पास, टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड. So you must remember what is the template stand. So in a transcription unit, that stand which run in 3' to 5' direction, okay, that stand is known as the coding stand. That stand is known as the template stand, sorry. And what is a coding stand? So coding stand is not coding for anything. Okay, coding stand कुछ भी कोड नहीं करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान, पर कोडिंग स्टैंड जो है इट इज एक्ट एज अ रेफरेंस फॉर लोकेटिंग, ओके, फॉर गिविंग द लोकेशन ऑफ द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. जैसे हम कहते हैं कि प्रमोटर जो है तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 5' एंड पे प्रेजेंट है, तो हियर वी टेल द लोकेशन ऑफ द प्रमोटर ऑन द बेसिस ऑफ द कोडिंग स्टैंड whose polarity is in 5' to 3' डायरेक्शन. तो फिर कोडिंग स्टैंड जो है इसमें 5' एंड पर प्रमोटर होता है एंड 3' एंड पे टर्मिनेटर होता है, और उनके बीच में जो है जो जीन फ्लैंक करती है और उसको आरएनए पॉलीमरेज फॉलो करता है, दैट जीन इज नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन. ओके बेटे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट 2 एसेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान राइबोसोम कौन से 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो फर्स्ट आपने बताना है कि राइबोसोम इट एक्ट एज अ साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो उसकी जो जगह है जहां पे वो प्रोसेस होना है वो साइट कौन सी है, राइबोसोम की है. एंड राइबोसोम इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, वन इज लार्जर सब यूनिट एंड अदर इज नोन एज स्मॉलर सब यूनिट. तो ये जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स हैं उसमें से द स्मॉलर सब यूनिट इट होल्ड द मैसेंजर आरएनए एंड द लार्जर सब यूनिट इज सप्लाई द ट्रांसफर आरएनए, एंड दिस ट्रांसफर आरएनए दे रीड्स द codons that are present on the messenger RNA and attach the corresponding amino acids accordingly. ठीक है, तो जब 2 ट्रांसफर RNA पास आ जाते हैं तो अमीनो एसिड्स की बाइंडिंग होती है, बॉन्ड एस्टैब्लिश होता है which is known as the peptide linkage, and this is known as amino acylation of the transfer RNA. ओके बेटे, अगला क्वेश्चन देखो. एक और रोल पूछा है उसने राइबोसोम का. तो राइबोसोम का अनदर रोल है कि 28S राइबोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे बिहेव करते हैं. तो वो जो है एक एंजाइम की तरह, एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं. ये कहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 115 में. देखिए यहाँ पर जहाँ लिखा है फिगर नंबर 6.13, उसमें सेकंड लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन है, द राइबोसोम इट आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट. 23S ribosomal RNAs in bacteria is the enzyme ribozyme for the formation of the peptide bond. Okay बेटे, अगला क्वेश्चन जो है that is in the medium where E. coli was growing, lactose was added which induced the lactopron. Then why does the lactopron shut down sometime after the addition of lactose in the medium. ठीक है, तो देखो उसमें आपको ये बोल रहा है कि ई कोलाई बैक्टीरियम जो है वो लैक्टोज की प्रेजेंस में अच्छे से ग्रोथ करते हैं, और इस तरह से लैक्टोप्रोन जो है उसको एक इंड्यूसर की फॉर्म में यहाँ पे लैक्टोज शुगर मिल जाती है.
पर बाद में वो कहते हैं कि यही लैक्टोप्रोन जो है वो शट डाउन कर जाता है कुछ समय के बाद, ठीक है। आफ्टर द एडिशन ऑफ द लैक्टोज, कुछ समय के बाद आफ्टर द एडिशन ऑफ द लैक्टोज दिस lactopron is shut down. What is the reason behind this? So as soon as this lactose sugar it is added in the medium, so this lactose sugar it actually act as an inducer, and this inducer it do not allow the repressor to bind to the operator region to cease the process of translation, ठीक है। तो सारे के सारे जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, दे प्रोड्यूस देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन्स। बट कहते हैं कि ऐसा जो है वो तब होता है, ठीक है, जब वो कहता है कि लैक्टोज आपने काफी पहले ऐड किया था मीडियम के अंदर, तो उसके बाद वो लैक्टोज शुगर जो है इट इज मोस्टली कंज्यूम्ड बाय द, ठीक है, एंजाइम जो है उसको काफी ज्यादा कंज्यूम कर चुका है, एंड नाउ द लैक्टोज शुगर इज नॉट अवेलेबल इन द मीडियम। तो इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में क्या होगा, द रिप्रेसर जीन व्हिच इज नोन एज द आई जीन इट प्रोड्यूस द रिप्रेसर ऑफ मैसेंजर आरएनए, and repressor of messenger RNA. It produce the repressor unit that used to bind with the operator region and do not allow the RNA polymerase to access, ठीक है। तो ये RNA polymerase जो है यहाँ पे काम ही नहीं कर पाता, और ना ही आगे के 3 जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं A, Z और Y वो एक्टिवेट होते हैं, और ना ही प्रोटीन्स बनते हैं। तो बॉडी के अंदर जो है डेफिशिएंसी, एनर्जी डेफिशिएंसी की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद देखो छोटी छोटी सी टर्म्स दी हुई हैं, तो that is explained in 1 and 2 lines the function of the following, ठीक है। प्रमोटर क्या होता है, तो प्रमोटर is a component in the transcription unit which contains special binding factors in them which are known as the sigma factors. So when the RNA polymerase it actually comes and has to start the process of transcription, then in that case this RNA polymerase has come near to the promoter region. It must have to be bind with the promoter region so that it can do the process of translation. तो यहाँ पे आके ये बाइंडिंग करता है, बाइंडिंग होने के बाद RNA polymerase जो है it is followed by RNA polymerase followed the gene, structural gene, the structural gene move forward, RNA polymerase उसको follow करता है, and last में RNA polymerase जो है वो एंजाइम टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचता है, लेफ्ट का नेसेंट RNA को लेफ्ट कर देता है, and again the RNA polymerase jump down the other stand of the DNA which is actually the coding stand। तो अब इसकी पोलैरिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, जो कोडिंग स्टैंड था पहले जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन में थी, अब उसकी 3' to 5' हो जाएगी, एंड ऊपर वाला जो स्टैंड है उसकी पोलैरिटी जो है वो यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगी, 5' to 3' हो जाएगी। नाउ इट बिहेव एज अ रेफरेंस स्टैंड, तो ये जो है वो रेफरेंस स्टैंड की तरह बिहेव करेगा। ओके बेटे, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए इज एक्चुअली परफॉर्मिंग हियर 2 फंक्शंस, ठीक है बेटा। ट्रांसफर आरएनए जो है उसको एडेप्टर आरएनए भी बोला जाता है, एंड यू नो दैट इट हैज अ फ्लावर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, which is very much similar to the cross in religion Christianity. So one end of the transfer RNA it comes in contact with the messenger RNA. You know that on the messenger RNA codons are present. So this transfer RNA it actually read those codons, ठीक है, codons को ये read करता है and attach the corresponding amino acid according to those codons, ठीक है। But how it read the codons, it come in contact with the codon and from its that very end it read the codon, and on its own end it attach the anticodons related with that. But on the other end, which is a little bit farther from the first one, what it is going to be attached, amino acids. So in this way this transfer RNA is doing a significant job here. Okay beta, what are exons? So those non-coding sequences which are present in the DNA, and it also comes in messenger RNA, where when the processing of the messenger RNA will not take place, so they are known as exons. So exons non-coding sequences होते हैं और ये कुछ भी कोड नहीं करते, जबकि 1 minute बेटे, here is a mistake, ठीक है। एक्सॉन नहीं, एक्सॉन बेटे कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं एंड एंट्रॉन्स नॉन कोडिंग, ठीक है। तो याद रखिए कि एक्सॉन्स जो है वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट कोडिंग सीक्वेंसेस है, और किसके लिए कोड करती हैं, प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। पर जो एंट्रॉन्स हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं और वो कुछ भी कोड नहीं करते, इसलिए जब मैसेंजर आरएनए तैयार होता है फ्रॉम द डीएनए, बोथ द एंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स दे कम, ठीक है।
पर जो एक्सॉन्स हैं, बिकॉज दे आर द कोडिंग सीक्वेंसेस, ये जो एक्सॉन है, ठीक है, ये कैसे हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस है, सो दे कोड फॉर द अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, ठीक है। तो फिर ये आगे जाके एक्सॉन्स जो है वो कोड करेंगे अमीनो एसिड्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, पर एंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, और एंट्रॉन्स जो है उनका जो रिमूवल किया जाता है फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए, इट इज नोन एज स्प्लाइस, इसको स्प्लाइसिंग कहते हैं, इट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ दिस प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए, अदर टू स्टेप्स आर कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है। तो याद रखेंगे एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, एंट्रॉन्स नॉन कोडिंग। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट? तो यू नो द आंसर वेरी वेल कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज नोन एज अ मेगा प्रोजेक्ट बिकॉज़ फर्स्ट टाइम द साइंटिस्ट डिसाइडेड that they will going to count 10 to 10 raised to power 9 chemical base pairs that constitute the human genome, so it is not an easy task, ठीक है। Another very important thing is कि when they are going to count such a enormous data about the genes, so not only they are finding out the number of genes that are present on the genome, they are also going to find out the structure, function and complete information regarding that gene. So in that situation, ठीक है, enormous data has to be created and it is very difficult for scientists to store this data. Initially they decided that we store this data in the form of books, but there are more chances that these books may be destroyed by certain insects. So the storing of information through books should not be considered as a safe one. So later on, scientists they decided that they should feed this information in the form of databases, and they insert that databases inside the computer and put code word for that, ठीक है। तो जो भी कोड वर्ड लगाएंगे ना, उस पर्टिकुलर जीन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस तरह से वो कहता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसमें वन बेस पेयर जो है उसकी कॉस्ट जो है तो $3 थी, and here the scientists have to count the base pair in millions or billions, so you can easily find out कि कॉस्ट कितनी बड़ी हो सकती है। That's why this project is not an ordinary project, it is a mega project, because initially USA is involved, but later on UK and other countries from Asia, China, कोरिया, ये सारे कंट्रीज भी जो है इसके अंदर इसके साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हो गए थे, इसलिए इसको क्या बोला गया कि इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट। ओके बेटा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? सो यू रिमेंबर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ रैपिड एंड क्विक मेथड ऑफ कंपेयरिंग the repetitive DNAs of two individuals, because these repetitive DNAs they show extreme level of polymorphism, means extreme level of genetic variations. Okay, so these repetitive sequences they have certain chemical base pairs which are repeated in a characteristic pattern according to different chromosomes. So when we compare two individuals, okay, then both of these individuals they have different kind of repetitive sequences present in their corresponding chromosomes. On the basis of that, we can identify that one individual is different from the another individual. एक individual जो है वो दूसरे individual से differ करता है। Another very important thing is कि mutations occurs, जब भी mutations होती हैं तो उससे genetic material में changes होती हैं। So here what they said कि these repetitive DNAs are actually present on the non-coding sequences, and on these non-coding sequences, because these non-coding sequences they are not coding for any polypeptide or protein. So this means when these non-coding sequences it move from one generation to another, then they keep on piling up, and in this way huge level of variations it occurs in the present offsprings. So on the basis of that we can easily identify one offspring from the another. Yes, बेटे applications बता रही है DNA फिंगरप्रिंटिंग की। तो चीफ एप्लीकेशन इसकी फॉरेंसिक साइंस के अंदर है। So we can easily find out the criminals that are associated with different crime scenes on the basis of this DNA fingerprinting. Second very important point is, दूसरा जो सबसे important point है वो ये है कि disputed parentage के cases को हम इससे sort out कर सकते हैं। Third point है कि human races के evolution के बारे में जानकारी हमें मिलती है human genome ये DNA fingerprinting से। Okay, इसके अलावा it can also tell us the ancestors, the nearby ancestors of a present species. All of these they come under this. We are on question number 14. Briefly describe the following.
ठीक है बेटे, फर्स्ट देखो ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? इट इज एक्चुअली द मैसेंजर ऑफ, इट इज एक्चुअली द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए. ठीक है, जब डीएनए में से मैसेंजर आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म. तो पॉली मींस मेनी एंड मॉर्फिज्म मींस चेंजेस. ठीक है, अगर वो कहता है कि हमारे जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस आती रहती हैं, वेरिएशंस आती रहती हैं, एंड रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो भी साइड बाय साइड चलता रहता है, इसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. The next is known as translation. What is translation? So it is the synthesis of the proteins from the messenger RNA. और ये मैसेंजर आरएनए किससे बने हैं? डीएनए से बना है. तो याद रखिए डीएनए से हमेशा मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं. उसके बाद बेटे ट्रांसलेशन के बारे में पूछा हुआ है, तो आपने पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन का लिख देना है यहाँ पर. ठीक है, उसमें वर्ड आना चाहिए अमाइनो एसाइलेशन ऑफ द ट्रांसफर आरएनए क्या होता है. 23 स्वेडवर्ग वाले राइबोसोम्स जो हैं वो राइबोजाइम एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, ये आपने याद रखना है. और आप पूरा प्रोसेस लिखेंगे चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए से लेकर व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल द स्टेप्स. इट मे बी आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन उसके बाद कटिंग ऑफ द डीएनए बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, एंड थर्ड पॉइंट में शिफ्टिंग ऑफ दिस डीएनए ऑन नाइट्रोजन शेल फॉर देयर सेपरेशन, एंड उसके बाद सेपरेशन के बाद एप्लीकेशन बाय पीसीआर, देन ट्रीटमेंट विद केमिकल बेस पेयर्स, देन इट कम्स इन किसकी फॉर्म में आ जाएंगे? ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में आ जाएंगे. ओके, एंड देन बाय द टेक्निक ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग यू कैन इजीली मैच द डीएनए ऑफ वन पर्सन विद द सैंपल डीएनए. और इसके अलावा जो है ये वाली टेक्निक जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? उसके बाद इसको नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर्स पे डाल दिया जाता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, एंड वी कैन इजीली स्टडी द overlapped band with the help of a technique, and that technique is known as autoradiography. ठीक है, जब हम इसे नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर में डालते हैं ट्रीटमेंट में सोर्स, तो इसको हम यहाँ पर जो है नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर्स पे जब हम इसको डालते हैं तो उस समय जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, एंड अगर अदर सैंपल्स को उसके साथ मैच करवाते हैं और ओवरलैपिंग हो जाती है तो उसको यू कैन नॉट इजीली सी दैट ओवरलैपिंग विद द हेल्प ऑफ द नेकेड आई. So here you expose उसके ऊपर हम क्या करते हैं? थ्रो करते हैं एक्सरेज, then those bands are clear to you, and on the basis of that we can easily find out कि कौन से पर्सन का वो डीएनए है. ओके बेटे, so this completes the all the questions of page number 125. यस बेटे, अभी ये क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर कॉपी में कर लेने हैं, अपने आप करने हैं, कहीं से कॉपी नहीं करनी. ठीक है बेटे, is there any doubt in any of the question बेटे? Matthew, any doubt? सब कुछ समझ आ गया? You are able to do? Yes ma'am, I can do. Okay बेटे, very good. Okay बेटे, इसके बाद हमारे पास चैप्टर था चैप्टर 7 evolution, which is not the part of the revised syllabus. ठीक है, तो we are not doing that chapter. चैप्टर 7 हम स्किप कर रहे हैं और हम सीधे आ जाएंगे हमारे अगले वाले चैप्टर पे जो है चैप्टर नंबर 8. ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे आज. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताती हूँ आपको. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? वी हैव आल्सो वन प्रेजेंटेशन विद अस. हमारे पास इस चैप्टर की प्रेजेंटेशन भी है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. पहले हम इस प्रेजेंटेशन को शेयर करते हैं. ओके बेटा, okay, you open page number I think 145 of your NCERT book, chapter number 8, human health and diseases. Okay beta, this chapter we are going to start today.
So what we are going to study in this chapter, we are going to study in detail about the common diseases that are found in human beings. ठीक है? So these may be some infectious diseases or some non-infectious diseases. For example, if I have to give the example of an infectious disease, तो उसमें कॉमन कोल्ड आ जाता है. कॉमन कोल्ड एक इन्फेक्शियस डिजीज है. इट एक्चुअली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीजेस इजीली ट्रांसमिट होती है, these diseases they are known as the infectious diseases. So we are going to study here about infectious diseases and non-infectious diseases. So there are certain diseases which cannot transmit from one person to another. ठीक है? कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती. It only develops in the body of a particular person. So such diseases are known as the non-infectious diseases. For example, cancer. ठीक है बेटे, कैंसर जो है वो एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है. ऐसे नहीं है कि घर में किसी एक पर्सन को कैंसर है तो उससे घर के बाकी जो लोग हैं उनको कैंसर हो जाएगा. दिस मे नॉट बी द केस. ओके, इसके अलावा हम पढ़ेंगे